जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बाबर शबीर एंड आई एम लुकिंग आफ्टर एचआर फॉर जेके ग्रुप। जेके ग्रुप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जेके ग्रुप इज़ कंपनी वेयर वी हैव primarily sugar business. So we have two units of sugar. Other than that, we have JK Dairies, which is uh, where we produce roughly 53,000 liters of milk every day. Other than that, we have a pesticide company which is known by the name of ATF Agri Sciences. In addition to that, we have two NGOs. One is LPP, Lodra Pilot Project, which is based out of Multan and Lodra. And then there is TEF, Tareen Education Foundation, which is also based in Lodra. So this is how JK Group is defined. I joined this organization almost 1.5 years ago. So in my past 25 years of career, uh, I've been into different organizations and worked in different HR departments. So the first realization that I had was कि यहाँ पे HR तो है, payroll भी run होता है, but we do not have a system. Everything was based out of either emails or Excel sheets. कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा था. येस, एम्प्लॉय फाइल्स वर देयर, बट समटाइम्स दे वर नॉट कंप्लीट. So उसमें I realized that the first thing that because my role over here is to transform this organization into a proper corporate organization, from what you say, from a state company to a corporate culture. So for that, to start with, I believed that we need a system that will help us streamline all the HR processes, keep the record, keep an eye on that. We can have reporting from that, and so many more things. So this was the primary purpose, that we wanted a system that can help us in streamlining our operations and move on to the next level, where we can work on the organization culture, development, talent development, and other things. So this was the primary thing that we had to ensure that our organization has. अच्छा, being in Pakistan and being in HR, थोड़ा सा challenging environment होता है for everyone in this field, because generally people do not take HR seriously. Yes, if you talk about multinational, वहाँ का culture इस तरह developed होता है कि people understand the importance of HR and they value it. But in local organizations, employees and even higher management just feel that these are the people who run the payroll, and at the end of the month everyone gets the salary. But HR is a lot more than that, a lot more than that. So ये realization एटलीस्ट सीनियर मैनेजमेंट में डेवलप करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है. हाउ डू यू डू दैट? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि जब मैं कभी मेरी अपनी जो लर्निंग है, जब मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा होता हूँ तो मैं उनको भी एट द सेम टाइम एवेल्यूएट कर रहा होता हूँ कि एक्चुअली आर दे इंटरेस्टेड इन transforming their organization, or it's just that they want to have this HR function in there because everyone is having that. So वो understanding बहुत ज़रूरी है कि your top level who is calling the shots वो कितना interested है. For people working in HR, I would recommend that do evaluate that once you choose to join an organization. Once you are there, then उनके नीचे वाली लेयर को कन्विंस करना relatively easy हो जाता है. And उसके लिए challenges आते हैं definitely, because business जो है वो समझता है कि सबसे important वही है, and business operations होता भी important है. That's the reality, because these are the people who are bringing in the money. Yes, but HR भी important है और उनका strategic partner है. ये उनको realize कराना पड़ता है by delivering certain things.
आप सिर्फ बातें करते रहें और कि जी हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेप्स शुड बी हेल्प देम रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स जो आपसे कंसर्निंग है। वहाँ से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड देन यू कैन कन्विंस देम कि जो आप कह रहे हो वो भी अच्छा हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। सो दिस इज द प्राइमरी चैलेंज दैट आई थिंक in local specially organizations our HR colleagues would face. When I started my career, although it was not HR, but obviously HR के colleagues तो होते हैं हमारी organization में, everything was manual. So सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता था कि एम्प्लॉय डेटा कैसे मेंटेन किया जाए। एक्सेल शीट्स में मेंटेन होता था एंड ऑब्वियसली एक आधी उस ज़माने में तो फाइल्स करप्ट भी हो जाती होती थी। with the technology it has made our lives very much easier because businesses को समझ आते हैं नंबर्स, और नंबर्स जब तक आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम ना हो आप नंबर्स नहीं ला सकते। तो टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड our HR to organize themselves and to have systems। क्योंकि पास्ट में क्या होता था, आपने एक प्रोसेस बनाया है कि जी एक्स बंदा रिकमेंड करेगा कोई चीज़, एक्स बंदा वैलिडेट करेगा, वाई बंदा उसको अप्रूव कर देगा, बट देयर वाज नो वे टू कंट्रोल दैट। HR सिस्टम्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं आपको कि दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द प्रोसेस फ्लोज, दीज आर द पोजीशंस हु आर ऑथराइज्ड टू डू सर्टेन थिंग्स। तो वहाँ से आपके कंट्रोल मैकेनिक्स भी इस्टेब्लिश हो जाते हैं जो आपके HR के प्रोसेसेस को इंश्योर करते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द थिंग विच हैज़ हेल्प्ड HR। आगे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है वन स्टेप अहेड, जहाँ पे आपको लंबी लंबी पॉलिसीज़ लिखने में डेज़ लग जाते थे, वहाँ पे आपको अब इन फ्यू आवर्स यू ऑब्वियसली आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है, आप उसको अपनी नीड्स कस्टमाइज बतानी पड़ती हैं एंड वहाँ से लेकिन एक्सट्रैक्ट्स आपको जल्दी आ जाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैव really helped HR in over decades. देखो, मास्टर इन वन और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो आजकल के बच्चे, और मैं अपने बच्चों को भी यही रिकमेंड करता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस, आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि फोकस्ड है, जो कि जब स्ट्रेस में आता है तो अकेला रहना पसंद करता है, हु एंजॉयज वर्किंग स्टेइंग फोकस्ड, तो उसको प्रॉबेबली वो फील्ड चूज़ करनी चाहिए जहाँ पे ही मास्टर वन ट्रेड और मे बी मोर देन वन, नॉट जस्ट वन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो अब इट विल डिपेंड अपॉन कि पर्सनालिटी आपकी क्या है। पीपल हु आर गुड एट मल्टीटास्किंग, हु कैन मैनेज many things and many individuals at a given time, unko perhaps they will flourish well in when they'll choose being jack of all trades. So मेरे ख्याल से ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि आपको आपकी पर्सनैलिटी क्या एंड हाउ वेल डू यू अंडरस्टैंड इट। सो कभी भी अपना करियर, कभी भी अपना चॉइसेस लाइफ में लेने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड yourself first. That's the first step. लॉ तो नहीं मैं कहूँगा, मोस्टली टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली लेबर लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन और जो इन्फोर्समेंट होती है हमारे कंट्री में, जो मैंने देखा है कि कई जगह हम, आई एम नॉट अगेंस्ट के लेबर यूनियंस नहीं होनी चाहिए या उनके राइट्स नहीं होने चाहिए, राइट्स पूरे होने चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बट समटाइम्स आई हैव सीन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यूनियंस ने कुछ डिमांड्स ऐसी शुरू कर दी विच हैज़ पुट ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फाइनेंशियली।
I have seen organizations shutting down because शायद हमारे लेबर लॉ के अंदर कुछ लूप होल्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैंड्स आर टाइड अप एंड लेबर कैन हैव व्हाटएवर दे वांट. सो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स और लेबर के राइट्स को इक्वली बैलेंस रखा जाए. पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन PIA, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा डीपली डाइव करें तो आपको रीजंस नज़र आएंगी कि हाउ एम्प्लॉयज़, इसकी एक छोटी सी जो डेटा की बेस के ऊपर मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल जो एयरलाइंस होती हैं उनके एवरेज एम्प्लॉयज़ पर एयरक्राफ्ट एज़ कंपेयर टू जो PIA के आज से 2-3 साल पहले, अब तो उन्होंने काफ़ी कुछ 2 ऑर्गेनाइजेशंस बना के उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बट एट द टाइम इट वाज स्ट्रगलिंग. उस वक़्त के पर एयरक्राफ्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को आपस में कंपेयर कर लीजिएगा, यू वुड गेट द आंसर. So for all the young people who wants to have their career in HR, it's about people. तो कुछ लोगों को it comes naturally. They understand human emotions, they understand human behaviors. अगर तो आपका इंटरेस्ट उसमें है, then you would be more successful than any other person because बेशक आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं इन एन HR रोल, लेकिन आपका रोल इन HR होता है टू ऑर्गेनाइजेशन टू एडवाइज फॉर हाउ यू कैन इंश्योर के ऑर्गेनाइजेशन में पीपल आर वर्किंग इफेक्टिवली. तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस और उनकी क्या उनको मोटिवेट करता है, क्या उनको डीमोटिवेट करता है, हाउ देयर इमोशंस आर मैनेज्ड, वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. एंड एज आई सेड बिफोर कि सम पीपल हैव दैट नेचुरल कैपेबिलिटी, अगर वो है तो उसको ज़रूर यूटिलाइज करें एंड कम इनटू द HR फील्ड. यार देखो, ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव से बात करनी है कि एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से बात करनी है. अगर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बात करनी है तो जब आपकी लर्निंग लगे आपको ख़त्म होना शुरू हो गई है, उसके 1 साल बाद आपको मूव कर लेना चाहिए. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं इट हैज़ अ कॉस्ट, तो उनकी रिटेंशन जो है या एट्रेशन जो है वो 7-8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इसमें थोड़ा सा हम अपने सोशल फैब्रिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि जी पाकिस्तान के एजुकेशन के क्या मसले मसाइल हैं या क्या अच्छा हो रहा है. जो मुझे फील होता है, अगर मैं उसको शॉर्ट करके कहूँ तो हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे होते हैं, बेसिक एजुकेशन दे रहे होते हैं हम, लेकिन उनकी वैल्यूज़ के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे होते. यस, वैल्यूज़ घर से भी आती हैं, बट एट अर्ली स्टेज द इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे बच्चे जा रहे होते हैं और जिस कम्युनिटी में वो उठ बैठ रहे होते हैं, वहाँ से बहुत सारी वैल्यूज़ पिक कर रहे होते हैं. तो उन वैल्यूज़ के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा किसी भी स्कूल में, क्योंकि दैट्स द एज जहाँ पे लोगों के करैक्टर बिल्ड हो रहे होते हैं. उसका रिजल्ट क्या हुआ है? एम्पैथी है ही नहीं, कोई किसी के ऊपर बात ही नहीं कर रहा. हमारी सोसाइटी जो है वो बड़ी सेल्फिश हो गई है. इसकी एग्जांपल आपको रोड्स पे भी मिल जाती है, इसकी एग्जांपल आपको ऑफिसेज में भी मिल जाती है, इसकी एग्जांपल आपको बिजनेसेस में भी मिल जाती है. सो आई थिंक वो वैल्यूज़ जो हैं हमारी, जो रिलीजियस भी हैं, उनको हमने कहीं साइडलाइन कर दिया. उस पे एजुकेशन सिस्टम को काम करने की ज़रूरत है एंड टू डेवलप नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स हु हैव नॉलेज, टू डेवलप गुड इंडिविजुअल्स. लीडरशिप को अगर आप डिफ़ाइन करें ना, तो जो मैंने पहले भी बात की थी
कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ। जब आप अपने आप को समझते हैं तो आप अपने आप को लीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है, एंड हाउ डू यू रिएक्ट एट दैट टाइम। जब आपको पता होता है हाँ मुझे इस तरह की सिचुएशन में गुस्सा आता है, एंड आप अपने आप को उस टाइम पे समझते हुए कंट्रोल कर लेते हैं एंड यू स्टे रेजिलिएंट, तो दैट्स हाउ यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ। तो पहला स्टेप जो लीडरशिप का होता है दैट इज हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ। उसके लिए आपको अपने आप को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इससे जब यहाँ आप मास्टर कर लेते हैं, क्योंकि इट्स फॉर मी लीडरशिप इज स्टेजेस, यू कांट बिकम लीडर इन जस्ट वन डे। जब आप अपने आप को मास्टर कर लेते हैं, अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। आप इर्द गिर्द के कुछ लोगों को समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि समझेंगे तो फिर आप उनको मैनेज कर सकेंगे। मैनेज करने का क्या मतलब है, क्योंकि जनरली इंसान जो है सॉफ्टर साइड से ऑपरेट कर रहा होता है। सॉफ्टर साइड ऑफ द ब्रेन मीन्स इमोशंस से ऑपरेट कर रहा होता है। लॉजिकल रीजनिंग यस होती है, बट उसके बिहेवियर्स जो हैं वो दे आर कमिंग फ्रॉम द सॉफ्ट साइड। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच इंडिविजुअल, जो कि आप टीम को कह सकते हैं कि जी आपका ये टीम मेंबर जो है इम्पल्सिव है, ये टीम मेंबर जो है वो रिजिलियंट है, ये टीम मेंबर जो है ज़रा इसके इमोशंस हाई हैं, इंथुजियास्टिक ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंगली आप फिर उनको जो कहते हैं ना मेडिसिन या उनको रोल या उनसे काम उसी नेचर का ले रहे होते हैं, एंड दे स्टे हैप्पी एंड यू स्टे हैप्पी। जब आप यहाँ से ग्रो करते हैं तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करने की पोजीशन में आ जाते हैं। सो फर्स्ट योरसेल्फ, देन अ शॉर्ट टीम एंड देन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप इसके भी मास्टर हो जाते हैं, देन यू कैन, नॉट ऑल ऑफ अस, बट यू कैन गो टू द लेवल जहाँ पे आप सोसाइटीज़ को लीड करना शुरू कर देते हैं। आइडियली जो हमारे मुल्क के अंदर लीडर्स हैं जो कि हमारे मुल्क को लीड कर रहे हैं, इस प्रोसेस के थ्रू आने चाहिए। हमें उनको एवेल्यूएट इस तरह करना चाहिए कि क्या वो खुद को अच्छा लीड कर रहे थे और अपनी टीम्स को और परहैप्स लार्जर टीम को, तो फिर क्या वो इस काबिल हैं कि हमें लीड कर सकें एज अ कंट्री। सो दिस इज़ माई सिंपल फार्मूला ऑफ लीडरशिप। सो इट्स ऑल अबाउट, और अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है, इट्स अबाउट रिलेशनशिप। जब आप ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलेशनशिप बनता है, तभी आप इंसान की वो सॉफ्टर एलिमेंट्स को देख सकते हैं। अदरवाइज लोगों ने कामोफ्लैज किए होते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपनी सॉफ्टर साइड ऑफ द ब्रेन। सो रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो यू विल गेट टू नो द पर्सन वेल। अच्छा, मेरा अगर कैलेंडर देखेंगे तो मंडेज के फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स मैंने बुक किए होते हैं अपने साथ, जिसमें मैं अपने आप को वीक के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ। सो यू वुड सी अ लॉट ऑफ पोस्ट-इट्स अराउंड मी, क्योंकि मेरी मेमोरी ज़रा शॉर्ट है तो मुझे अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सो मैं अपने और अपनी टीम से रिलेटेड सारे काम जो हैं वो उसके ऊपर लिस्ट डाउन कर लेता हूँ कि इस वीक के अंदर क्या क्या हो जाना चाहिए। उसके बाद टीम्स के साथ मीटिंग्स, नॉर्मली जो हमारी एक कोर टीम है, बेसिकली द सी स्वीट जिसको कह सकते हैं, उनके साथ मीटिंग्स टू डिस्कस स्ट्रैटेजिक थिंग्स। ये दिन में हमारे वीक में 1-2 सेशंस ये होते हैं। टीम के साथ अगर कोई डिज़ाइन एलिमेंट्स के ऊपर है तो वो मेरे से आके कुछ फीडबैक ले लेते हैं और कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं। अदरवाइज़ ऑपरेशनल चीज़ें जो होती हैं वो चल रही होती हैं। सो अगर आप देखें तो इन अ डे यूजुअली कुछ मीटिंग्स चल रही होती हैं, कुछ फोकस्ड काम चल रहा होता है, कुछ टीम के साथ काम चल रहा होता है, कुछ ऑपरेशनल बूमरैंड्स कह सकते हैं आ रहे होते हैं, उनको हैंडल करना होता है। एक्साइट मुझे जो एचआर के फ्यूचर के बारे में कि पाकिस्तान में तो अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे बहुत सारा काम होने वाला है। तो मतलब अगर आप इंटरनेशनल या किसी डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पे तो एचआर के प्रोसेसेस बड़े सेट हैं। बहुत सालों से उन्होंने अपने
बेसिक्स तो बिल्कुल ही सेट कर लिए मैं, इवन सक्सेशन प्लानिंग्स उनके प्रोसेसेस आर फुली डेवलप्ड, और वो उनके ऊपर बस अब ईयर ऑन ईयर काम करी जा रहे हैं। वहाँ के मसले और हो गए हैं अब। यहाँ पे तो अभी हमारी मेरे ख्याल से 90% ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि अदर देन फ्यू सिलेक्टेड एमएनसीज, यहाँ जो अच्छी लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एंग्रो हो गई, फातिमा हो गई, टेस्कॉन हो गई, अब हम लोग कर रहे हैं। सो गिनती की ऑर्गेनाइजेशन होंगी जहाँ पे ट्रूली एचआर हो रहा है। तो अभी तो लॉट ऑफ रूम इज देयर, सो काम बहुत होने वाला है। बट यस, ये रियलाइजेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशंस आना बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट एचआर कैन डू एंड हाउ दे कैन ऐड वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन है, आपका आंसर इसका है कि रोल क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में। पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मेरे लिए जितना मैंने सीखा है लास्ट 25 ईयर्स में, लोगों को लगता है कि एचआर का रोल है वो पीपल के लिए होते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मैं थोड़े से फैक्ट्स की बेस के ऊपर बात करूंगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन जो है एचआर के ऊपर इन्वेस्ट इसलिए करती है बिकॉज वो चाहती है कि उनके रिसोर्सेज जो जिसके ऊपर दे आर स्पेंडिंग मनी, दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव, उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। अब एचआर में काम कुछ ऐसे होते हैं कि एज अ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि हैप्पी एम्प्लॉयज ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट्स टू प्रोडक्टिविटी। अब जो एचआर स्टेप्स लेता है टू इंश्योर कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट हो, उसका बाय प्रोडक्ट होता है कि एम्प्लॉयज गेट हैप्पी। तो वो एक शायद वो बन गया हुआ है कि शायद एचआर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए होता है या उनके लिए होता है। रियलिटी ऐसी नहीं है। एचआर होता ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही है। यस, जो वो काम कर रहे होते हैं उससे बाय प्रोडक्ट निकल के आ रहा होता है कि एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड और गेट हैप्पी और गेट सेटिस्फाइड। देखो यार, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, ईस्ट एंड वेस्ट बोथ। मैं जब ट्रैवल करता था तो मैं सोचता था यार हम लोग अब व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग फॉरेनर्स, तो मैंने देखा यार वो भी उतने स्मार्ट हैं जितने हम हैं। परहैप्स कई जगह हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आई वाज इन पेरिस। हम लोग वेल आई वाज इन मेट्रो। उनका एक हाउस ऑफ लर्निंग था जो कि पेरिस से ज़रा हट के था, सुबर्ब्स में रोएमो की एक नाम पे जगह थी। वो मोनेस्ट्री थी जिसको इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ था, एक कह लो यूनिवर्सिटी कह लो, मेट्रो की थी। अच्छा, वहाँ पे सारे यूरोप से लोग आए होते थे, तो उनको मैं देख के हम लोग चले गए इकट्ठे पेरिस। उन्होंने पेरिस नहीं देखा हुआ था एंड मैं एक आधी दफ़ा पहले पेरिस किया हुआ था। आई वॉज गाइडिंग दैम कि अच्छा कहाँ जाना है। मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती, जो लिखे हुए बोर्ड्स वो भी नहीं आते, एंड आई वॉज टेकिंग दैम टू प्लेसेस। अच्छा, इसी तरह जब हम वहाँ पे ऑब्वियसली आपस में वर्कशॉप्स कर रहे होते थे, तो वहाँ पे भी आई रियलाइज कि दे आर नॉट स्मार्टर देन अस। तो फिर इट मेड मी थिंक कि क्या गलती क्या है भाई, हम क्यों नहीं इतने डेवलप हो सके जितने वो डेवलप हो गए हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि उन्होंने वो वैल्यूज़ जो हमें हमारा रिलीजन या इवन हमारी सोसाइटी ने सिखानी चाहिए, वो अडॉप्ट की हुई हैं और हम वो सारी वैल्यूज़ को छोड़ चुके हुए हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक क्रॉसिंग आई जो कि टी जंक्शन था। सो एक साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, एक साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं और इस साइड से भी आ रही हैं, चौथी साइड नहीं है। अच्छा, मैं वहाँ पे ट्रैफिक थी, सुबह का ऑफिस का टाइम था। वहाँ पे मैंने नोट किया कि ये ट्रैफिक फंस क्यों नहीं रही, क्योंकि आप इमेजिन करो सिग्नल बंद है, 3 जगह से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में क्या होगा, यहाँ वाली यहाँ घुसी होगी, यहाँ वाली यहाँ घुसी होगी, सब जैम हो जाएगा, कोई भी कहीं नहीं जा सकेगा। बट वहाँ नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा वो कर क्या रहे थे।
वो पता नहीं उनके, ऑब्वियसली इसीलिए मैं अर्ली एजुकेशन के ऊपर भी बात करता हूँ, उनके ब्रेन्स जो हैं वो उस वक्त से डिज़ाइंड होते हैं। एक साइड का एक ड्राइवर गाड़ी निकालता था, उससे पिछला वाला रुक जाता था। उसके बाद इस साइड का गाड़ी निकालता था, उससे पीछे वाला रुक जाता था। उसके बाद इस साइड का गाड़ी निकालता था, उससे पीछे वाला रुक जाता था। एंड दे न्यू कि किस किस की टर्न अब चल रही है, एंड दे एक्नॉलेज कि हाँ भाई अब ये मेरी टर्न नहीं है, ये उसकी टर्न है, अब ये इसकी टर्न है, मेरी टर्न आएगी तो मैं निकलूंगा। इमेजिन ये पाकिस्तान में हो सकता है? सो वो क्या वैल्यू वी हैव टू थिंक अबाउट, कि वो क्या चीज़ है जो वो अपने बच्चों में डाल देते हैं, जो कि उनको दूसरे का एहसास करना सिखाती है, और हम नहीं करते। हमारे यहाँ पे आप सिग्नल पे जाओ, आप 3 लेन्स पे खड़े हो, एक यहाँ से घुसेगा, उसके पीछे 25 और यहाँ से घुसने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या तकलीफ है भाई, हम क्यों नहीं वैसे कर सकते? यही, और दिस इज नॉट जस्ट ट्रैफिक, यही एटीट्यूड आपका जॉब पे भी होता है, यही एटीट्यूड आपका एक सब्जी वाले का भी है, एक फैक्ट्री ओनर का भी है, कि मैं दूसरे को कैसे काटूं। दैट्स व्हाट्स पुलिंग अस बिहाइंड। ये हमें चेंज करना है कि दूसरे का क्या राइट है, आपका क्या राइट है, उतना ही ख्याल उसके राइट का भी करो जितना अपने का कर रहे हो, तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर।